आप लोग को अब डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं जी? जी नजर आ रहा है। परफेक्ट है. So we will be diving today into the regulatory framework. We will look at the various framework which governs this entire vertical. थोड़ा सा mundane भी है, तो you have to bear with me. हर चीज मजे के लिए नहीं की जाती जी. तो खैर, I'm just wondering who among you is following cryptocurrency. I'm not, but I would like to. Yeah, generally. So it's although I I have also taken a very deep dive in terms of understanding this asset class, but it has somehow evaded my level of understanding. I don't know how. So it doesn't really move on the fundamental which kind of dodges me कि खुदा ना करे ऐसा at some point in time ये ना हो कि this asset class immediately evaporates. And I think it is now has like close to $1 trillion in terms of the market cap. It's a very serious capital money. I mean, I have a friend who's gone into it and he's done exceptionally well out of it. But to the point that it's a life-changing number that he's managed to achieve in terms of growth. But I still don't believe that. I feel, of course, he's intelligent, but I think there's more luck to it than his intelligence, in my view. Yeah, I think there's more luck to it because we have so many geniuses sitting out there. So I'm sure they would have definitely capitalized on this opportunity. But yes, it is a very difficult asset class. आपके साथ ये भी नहीं पता लगता आपके वॉलेट से कौन चुरा के ले गया पैसे. तो अच्छा, okay. वो भी एक बड़ा चैलेंज है ना. सो इनकी एक्सचेंजेस के अंदर भी चोरियां हो जाती हैं. ऑफ लेट आप देखोगे जापानीज एक्सचेंज के अंदर पता नहीं कितने बिटकॉइन चोरी हो गए. Okay. एंड बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई ट्रेल नहीं है इस एसेट का कि यार ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड था क्या नहीं था व्हाटएवर. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड इसके अलावा भी छोटी करेंसीज थी जिनके स्पॉन्सर्स ने पैसे रेज किया और भाग गए वो लोग. अब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ बैठे हुए थे, कौन है स्पॉन्सर दुनिया में, किधर से ऑपरेट कर रहे थे. यू कैन नॉट कैच एनीबॉडी. Right. I also know that there is some caveat around the utilization of your money in this. It's not as simple as how, if, for example, if you have cash in the bank or if you have cash in your wallet, you use it as you please. Here, I believe, I don't know now, but at the beginning, my friend used to tell me, especially for Bitcoin, even how you use your money, there's a caveat around it. You need to be careful as to how you use it as well. Might be. So it's a very difficult asset class to kind of understand. The problem is that although it sounds very fancy, that it's a decentralized system, but आज अगर मैं आपको एक सादा पेपर दे दूं और सादे पेपर में बोलूं ये स्टेट बैंक का पीछे से एंडोर्समेंट नहीं है, वो पेपर तो पेपर ही है फिर. If there is no institution which is guaranteeing that you will be given an equivalent amount of whatever you're holding in the hand right now, equivalent amount of resources against this, then that is worth it, that amount. Otherwise, अगर पीछे कुछ है ही नहीं, इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, ना कोई और है, बिटकॉइन में तो कोई भी नहीं है पीछे. Yeah, I mean it's subprime mortgage 2008 times 50 in my view. It's heading in that direction. It is. So देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न सोसाइटीज ना इनका बड़ा क्लासिक फंड है. So what they do is they are very good marketers. They are brilliant marketers. They come up with an idea and then subsequently they make this idea so big that everybody latches onto that idea.
And once everybody latches onto that, they slowly and gradually they take out themselves from that thing, and then subsequently this entire thing will fall down. Yes, and Khurram Sahab, even more than that, if you, I mean, you know, when we talk about, for example, credit debt obligations that led to 2008, right, subprime mortgage crisis, at least there was an obligation for somebody to pay, right? For example, so here, if you look at the only time that I think this really got traction where countries like El Salvador started accepting it as legal tender, but the problem is those are countries that have been frozen out of the international financial system. They have no option but to, you know, let assets of trade like you know, crypto come in. But if you look at most Western countries, people have not recognized it as legal tender so far. Nobody has. आप देखें ये हो क्या रहा है. देखिए हमारा एक Khanani and Kalia is a very very famous name. So what Khanani and Kalia used to do is, without tracking whoever he's sending money to, he used to charge his commission X percentage and he used to send the money. Okay. This is exactly what is happening in Bitcoin. You are just आप एक बिटकॉइन यहां से किसी को दे दे तो आपने टेक्निकली $8,000 ट्रांसफर कर दिए, या मतलब $60,000, अब तो $60,000 का हो गया. इतनी इनॉर्मस वेल्थ आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक बीटीसी के थ्रू. तो आप खनानी एंड कालिया को तो पकड़ लिया आपने, इसको तो पकड़ ही नहीं रहा. ये तो पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है वो फंडिंग, किसी और के थ्रू. आप तो आप फंड भी कर सकते हैं. तो बॉटम लाइन ये कि दीज वेस्टर्नर्स लाइक अबव द बोर्ड, ये रूल इनके लिए अप्लाई नहीं करता, बाकियों के सबके लिए अप्लाई करता है, which is I fail to understand. Yeah. Okay, anyways, it's a very large debate. So the thing is, it's difficult asset class, and yes, you should be a little updated, not very aloof, because obviously this is something contemporary, and it obviously exists in the ecosystem right now as we speak. Okay, so now getting back to the regulatory framework. Okay. So this is called public offering regulations 2017. It is a very very important regulation from the perspective of listings. So who an issuer shall make a public offer subject to the following conditions. Who can make a public issue? Like there has to be some criteria. The issuer shall have been in operation for at least 3 years, financial years. This is criteria number 1. They have a track record of for the at least 2 preceding financial year from its core business. It's not like that your core business is like brokerage and you are making money from investing. So you need to demonstrate that your core earning is obviously making money. So not 51% of the shares are held by some same person. So there has to be some retention. At least company, the sponsor who is bringing in that company for listing, he should have held that particular company for the last 2 years at least.
its book value is not less than the face value. That obviously assuming this is also a filter, that the book value, assuming it's a 5 rupee book value and you're issuing the face value is 10 rupees, then there is an erosion in that case. So provided that clause number 3 shall not apply in the case of new issuance of shares, provided that clause number 1 and okay, there are exceptions to it. In the case of 1 and 4, it should not, obviously it won't apply for greenfield project. Greenfield project is something which is you already right now you've conceived, it's on paper right now, and you have some sort of a feasibility in place. So in that case, the condition number 1, that it has to be in operation for 3 years, A, and its book value cannot be less than face value, it will not apply in the case of greenfield project. Okay, and in the case of the point number 3 will also not apply if there are new shares being issued. The it has to be in the book entry form. So remember that the shares can have 2 forms. Either they can be physical, A, or they can be scriptless. I hope everybody understands. Majority of the time they are scriptless. Like it's पुराने ज़माने में पहले physical form में होते थे, अब कम है बहुत. It is generally discouraged now. अब option भी नहीं आता है उसके अंदर. No issuer shall make a public offer if the issuer or the sponsor, promoter, substantial shareholder, director, and associate have overdues, defaults, irrespective of the amount appearing in the report obtained from CIB. अगर उनका किसी का भी default है, बेशक छोटा भी default है, तब भी वो कंपनी को नहीं लेकर आ सकता for public listing. इसमें हमने वो वाला भी डिफॉल्ट दूर कराया है जो क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट नहीं होता, जो फी वगैरह रह जाती है, तो वो ECIB में आ रहा होता है कि आउटस्टैंडिंग है, तो हम कैजुअली छोड़ देते हैं. तो लेकिन ये है कि आपको क्लियर ECIB के लिए यू नीड टू रिमूव दैट डिफॉल्ट. द इशूअर और इट्स डायरेक्टर स्पॉन्सरशिप shall be holding the office of the directors or have been sponsored in the company which has been declared. अगर ये बड़ा ट्रिकी लॉ है. ये क्या लॉ है? ये लॉ ये है कि अगर उसका कोई स्पॉन्सर या कोई डायरेक्टर या सब्सटैंशियल शेयर होल्डर उस कंपनी का भी स्पॉन्सर, डायरेक्टर या सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है जो डिफॉल्टर काउंटर पे चली गई है एक्सचेंज के अंदर, तो उस केस में वो कंपनी को नहीं लेकर आ सकते. तो इसमें अभी मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्टिंग चल रही है मेन बोर्ड के ऊपर, उसके अंदर हमें वी हैव एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. वो कंपनी बेसिकली जो कंपनी है, विदाउट नेमिंग द कंपनी, उस कंपनी में जो उनके बोर्ड पे हैं डायरेक्टर, ही वाज आल्सो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटिटी इन 2018. That during his tenure, that particular SOE went for they got into defaulter counter. So hence उसकी वजह से, उस non compliance की वजह से he cannot be the director on this particular company which is going for listing right now, because he was director of that company when it went into defaulter counter. ये बड़ा important law है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, I can go through it again. सबको समझ आ गया? Khurram Saab, I just have a quick question to ask here. Is this applicable in a case where one of the board of directors is also on the board for a defaulter company that is currently on the defaulter counter, or even if that has historically ever once been on the defaulter counter? ये जो लॉ है ना मेन बोर्ड का लॉ है, इट वो कहता है कि कभी भी डिफॉल्टर काउंटर पे गया हो and you were part of that board when it went into defaulter counter, so then you cannot be a director of that company which is going for listing right now.
Even if that company is not at the moment on default. समी साहब, जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो 2018 में डिफॉल्ट में गई थी, उसके बाद डिफॉल्ट रिस्टोर हो गया। ठीक है। अब वो भी लिस्टेड कंपनी है अभी भी, लेकिन उन्होंने हमें 2018 की नॉन कंप्लायंस पे रोक दिया कि उस टाइम पे वो डिफॉल्टर काउंटर में गई थी जब वो डायरेक्टर थे। नहीं तो अभी तो करंटली तो नहीं है ना डिफॉल्ट काउंटर पे। करंटली नहीं है, ये तब भी रोकेंगे आपको। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या कहते हैं, ये पॉइंट नंबर ए पढ़े, which had been default declared defaulter, which has been नहीं, which had been declared defaulter by the Security and Exchange Commission. तो अब ये जो लॉ है ना, ये लॉ जेम बोर्ड के लिए फर्क है। जेम बोर्ड के अंदर करंट कंपनी डिफॉल्टर काउंटर पे होनी चाहिए, अगर करंट नहीं है तो आपने पीछे बेशक कोई भी गुनाह किया हो, यू आर थ्रू। तो मेन बोर्ड में माफी नहीं है? मेन बोर्ड में माफी नहीं है सर। माफी तो सर, तो पाकिस्तान में सजा ही नहीं होती किसी को, पहले तो माफी तो छोड़े। तो खैर एनीवेज, ये लॉ एग्जिस्ट करता है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, whose TRE certificate has been cancelled or forfeited by the Securities Exchange. अगर किसी का TRE सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ हो या फॉरफीट हुआ हो, उस केस में भी वो आपके बोर्ड पे नहीं हो सकता, ना इश्योर हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, और इट हैज बीन डीलिस्टेड बाय द एक्सचेंज फॉर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। तो ये ऐसे कोई भी शख्स जो कि आपके बोर्ड पर हो, इसकी कंपनी डिफॉल्ट हो गई हो, या फॉर दैट मैटर उसके किसी के बोर्ड पे वो डिफॉल्ट हो गया हो, या फिर उसका कोई TRE सर्टिफिकेट जिसका वो मेंबर हो वो डिफॉल्ट हो गया हो, कैंसिल हो गया हो, या फिर डीलिस्ट हो गई हो, कंपनी डीलिस्ट कर दी हो एक्सचेंज ने फॉर सम नॉन कंप्लायंस, nobody can act as a this company cannot go for listing. अच्छा सर, ये बताइएगा सर, इसमें जो ये लिखा हुआ है कि इशूअर, डायरेक्टर, स्पॉन्सर और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स, उसमें सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स कौन होंगे? क्योंकि इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि बाद में जब आपने लिस्ट कर दी उसके बाद जो शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, हो सकता है वो कोई डिफॉल्टर हो, तो उस वक्त तो आप नहीं पकड़ सकते। तो ये शुरू में कौन है ये? उरूज इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आप देखें सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कौन होता है, लॉ डिफाइन करता है एनीबॉडी हु ओन्स मोर देन 10% इज क्लासिफाइड एज सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। ओके, सो वन थिंग इज क्लियर। सो दूसरा पॉइंट आपका क्या था? दूसरा पॉइंट आप पूछ रही थी कि अगर वो बाद में आता है, या अगर वो मतलब शुरू में सब्सटेंशियल नहीं है शेयर होल्डर, बट वो बाद में जब वो हो जाता है, IPO पे चली जाती है कंपनी, होता ये है कि जब किसी भी चीज का लाइसेंस ले रही होती है ना, तो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। फ्यूचर में आपने क्या किया वो नहीं देखा जाता। फ्यूचर में जब वो आपको ग्रांट कर रहा था अप्रूवल SECP या PSX, उस टाइम पे दे वांट एनी नॉन कंप्लायंस एज पर लॉ। हाउएवर पोस्ट अप्रूवल उसमें कोई ऐसा शेयर होल्डर आया था जो किसी और के डिफॉल्टर काउंटर पे है, वो इस तरह नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन रिट्रैक्ट होगी, ट्रांजैक्शन तो हो जाएगी आपकी, सो हो गई थी, ये बाद में बाद की बात की है। ओके गॉट इट। Okay. The consultant to the issue, book runner and underwriter, and their associate shall not publish any research report, whatever by name in respect of the issue. So, I'm acting as financial advisor for a lot of companies, but so obviously I also have a research department which publishes data, a lot of data, and a lot of people read whatever we do as a platform in terms of the research work. So we also have the potential to kind of influence the thought process of a lot of investors by covering the transaction which investment banking is doing. So the law now here completely disallows us that you cannot publish a research report for any transaction which are
in which you are acting as a consultant to the issue, book runner or an underwriter. So you cannot until the point the company gets listed. So there should not be any room for influence. So subsequent to the underwriting agreement with the issue or the underwriter issue may तो पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आप देखें इसमें ट्रांजैक्शन के अंदर आपको अंडरराइटिंग भी चाहिए होती है। अब हमारे पास ऐसे इश्यूज भी आए जिसमें अंडरराइटिंग नहीं चाहिए। अब जैसे अगर आप 100% बुक बिल्डिंग के थ्रू लेके जा रहे हैं तो उसमें अंडरराइटिंग नहीं चाहिए होती है। हाँ, अगर आपके पास कोई एलोकेशन स्ट्रेटजी एलोकेशन है जैसे 75-25 आप जनरल पब्लिक में देते हैं तो उसके अंदर आपको अंडरराइटिंग एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर लिया तो आप अपना अंडरराइटर रिस्क भी आगे थोड़ा सीड भी कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू अनदर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद एनी पोटेंशियल अंडरराइटर। तो उसमें होता ये है कि मैं सब अंडरराइट करा लेता हूँ, तो यहाँ पे उससे होता है कि मेरा अपना रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है। खुरम साहब जी, सिर्फ इतना पूछना था, जेम बोर्ड पे भी आपको अंडरराइटर की जरूरत है? नहीं जी। अच्छा, थैंक यू। The consultant to the issue may enter into separate underwriting separate agreements with any expert for performance of its duties. This is an agreement which we call a mandate, which covers the fees which I'll charge and the scope of services I'll perform for the client. Issuer shall issue CDS. I told you earlier that all the scripts you are issuing, it has to be scriptless. So hence it has to be CDC eligible, CS eligible, whatever you call it. The issuer through its consultant shall submit an application. So as consultant, as advisor to the client, we will submit an application to the exchange. And the said application also needs to accompany the draft prospectus, which is to be sent to PSX initially. The issuer, while submitting draft prospectus to the securities, shall comply with the following requirement with respect to the content. आपको content मैंने बता दिया था कि वो prepare the draft prospectus format is prescribed in first schedule. First schedule में guidelines दी हुई है prospectus के अंदर क्या क्या होना चाहिए. It should also be translated into Urdu. देखिए Urdu obviously it's a हमारी mother tongue है. So people who understand only Urdu, they also should not be disadvantaged. So hence this entire thing gets translated before it publishes in the newspaper. Prepare the draft abridged prospectus. Abridged prospectus में कुछ certain sections निकाल देते हैं ताकि अखबार के अंदर superfluous चीजें न जाए जो required ही नहीं है. Draft advertisement जो हम लोग जो advert चलाते हैं वो भी that advertisement has to be approved by the commission and both PSA by the commission. Supplement prospectus क्या होता है? It is also a concatenated version in case of shelf registration. पाकिस्तान में फिलहाल बहुत rare है. It is not a concept we are using right now. Draft supplement of the prospectus is that a supplement के अंदर जो आपकी book building खत्म हो जाती है तो बुक बिल्डिंग के बाद उसके अंदर नाम जाते हैं अंडरराइटरों के, क्या नंबर आया, कितना डेटा आया, क्या आया, सब चीजें सप्लीमेंट फॉर्म में जाती हैं. ये इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपको मैं दिखा भी दूंगा ये. अच्छा जी, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें लॉ जो है ना बड़ा क्लियरली बता रहा है कि भाई जो लैंग्वेज होती है ना प्रोस्पेक्टस की, इट हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल, plain, clear, precise and easily understandable. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो बंदा पढ़े इसको तो एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो ऐसा ना पढ़ रहा हो कि वो शेक्सपियर पढ़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या चीज पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा.
So the idea is that it should be very, very in plain vanilla English. The message is very easily communicated, and that is the idea. So the draft prospectus as submitted by the issuer shall be placed by the on a website for 7 working days. मैंने आपको पहले बताया था 7 दिन के लिए prospectus को PSX की वेबसाइट पे रखा जाता है for public comments. The secretary shall ensure that all comments received in the draft prospectus have been incorporated and addressed by the consultant. जब अगर उनको लगता है कि पब्लिक से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल कमेंट्स आए हैं तो वो हमें बोलता है PSX कि भाई इसको इनकॉर्पोरेट करो, तो हम उसकी बेसिस पे उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर रीसबमिट करते हैं टू PSX फॉर देयर अप्रूवल. Once they are satisfied that we have adequately incorporated all those comments, then they subsequently give us the approval, and this subsequently then it is sent to SECP. देखिए ये तो बहुत जेनरिक पॉइंट है. ड्यूरिंग दिस एंटायर कन्वर्सेशन PSX क्या चेक करता है, SECP क्या चेक करता है? SECP चेक करता है कि whether whatever is stated in the prospectus is true by looking at various documents. वो फिर देखता है कि स्पॉन्सर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने पहले क्या किया है, मार्केट में कोई धोखा तो नहीं किया, इस तरह की सारी चीज एस्टैब्लिश करता है. उसके अलावा वो भी एस्टैब्लिश करता है कि जो ये कह रहे हैं कि वेदर इस पे जो रिस्क है वो हम इस पे एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो रहे हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर, ताकि खुदा ना करे जो है अपना इन्वेस्टर मिसगाइड ना हो. तो ये सारी चीजें वो देखता है और ये बड़ा तकरीबन हमें समझे 2 से 2.5 महीने लगते हैं बिटवीन PSX एंड SECP. ये सारी चीजें बड़ा केयरफुली वो लोग देखते हैं. इसमें स्पॉन्सर की क्वालिटी, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, डिविडेंड पे पॉलिसी, डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री, ये सारी चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर. तब जाके वो फिर जो है अप्रूवल आता है उसका. आप लोग का यहां तक कोई सवाल है जी? प्लीज बताएं. कोई सवाल है जी किसी का? और आर वी गुड? Yeah. अच्छा. After obtaining approval of the Security Exchange Commission, the issuer through consultant or to the issue shall submit an application to the Commission for its approval. The application shall be accompanied by a processing fee. Obviously fees आप देंगे तो आपका केस आगे बढ़ेगा. अगर कोई change है prospectus में subsequent to approval by the commission and prior to its publication may be only be हमारे पास ऐसा भी हुआ है, कुछ ऐसी development भी हुई है कि approval आ गया हाथ में, लेकिन उसके बाद कोई चीज हमें लगा कि material है that needs to be disclosed, लेकिन it can only be disclosed with the prior approval of the exchange and commission. Any change in the prospectus subsequent to its publication may be made with only with prior written approval of the Security Exchange, and such change shall be disseminated to the public through addendum. अगर खुदा ना करे, देखें प्रोसेस है, इंसान है, गलती हो जाती है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर से भी गलती हो जाती है. तो उसमें होता ये है कि अगर assuming if there is still something which is material which is not part of the prospectus and which you feel should be part of the prospectus, आप पहले इंटीमेट करेंगे PSX को और फिर आप इंटीमेट करेंगे कमीशन को और फिर सब्सिक्वेंटली वो फिर आपको अलाउ करेगा कि आप एडेंडम डालें अखबार के अंदर ताकि सबको डिसेमिनेट हो जाए वो चीज.
अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आई बिलीव कैन बी जस्ट टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक हियर, ताकि अगर किसी ने कोई नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ ले, और अगर नमाज नहीं पढ़ी वरना फिर 15 मिनट्स बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर। ओके जी।
heaven forbid in one day can withstand magnitude 9 earthquakes and typhoons. The interior Assalamu alaikum ji. So I'm back. So let's start with this where we kind of stopped. So आप लोगों को डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई थोड़ा। अच्छा जी। आप नजर आ रहे हैं जी? जी विजिबल है। अच्छा जी। खुरम साहब, एक जो पॉइंट नंबर 15 था ना, वो जरा दोबारा जरा ये कीजिएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो ये 16 पे आ गए ना, तो पॉइंट नंबर 15। अच्छा, इसमें जो है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज, जी द सर। इश्यूअर थ्रू द कंसल्टेंट टू द इशू शैल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन। यानी एससीसीपी को ये 2 दफा जाएगा ये? नहीं फिर कमीशन इज द सेम एससीसीपी। सर, यहाँ मुझे लगता है कि जो इम्प्लाई कर रहा है ये PSX है। अब आई डोंट नो किस तरह इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। वी मेक इनिशियल सबमिशन टू PSX A, PSX subsequently uploads it on the वो वेबसाइट, उसके पब्लिक कमेंट्स कमेंट्स के लिए। पब्लिक कमेंट्स के लिए। उसके बाद जी, उनके जी। कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, जी, लिस्टिंग कमेटी को जाता है, लिस्टिंग कमेटी ओके करती है, और ठीक उसके है। बाद सब्सिक्वेंटली ये वहां चला जाता है अपना SECP। एससीसीपी जी। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द एससीसीपी, तो अगेन कमीशन को। सर मुझे लगता है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, मैं देख लेता हूँ प्रीएम्बल में इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, लेकिन दिस इज जी, जी। PSX। नहीं, कमीशन इज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, और ऊपर जो सिक्योरिटी कमीशन इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। या, और ऊपर भी सिक्योरिटी एक्सचेंज लिखा हुआ है। सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक दिस इज PSX। हाँ, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। कमीशन तो कमीशन ही है, कमीशन तो वेरी हाँ, क्लियर कमीशन है। कमीशन वही है, एससीसीपी इज द कमीशन। SECP इज द कमीशन। अच्छा जी, मैं अगर आप बोलते हैं मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ वैसे, अगर आप बोलते जी हैं प्लीज, तो। जी प्लीज।
Sir, it is the exchange. ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है ना वो है PSX है। सर आपको समझ अभी आवाज आ रही है आपको? जी PSX। जी 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 आ रही है। ठीक PSX है सर। ठीक है सर। ओके सो ये दूसरा वाला पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं, जो कि अगर अप्रूवल आ गया है तब भी वो अगर मटेरियल कोई चीज है तो और लेकिन पब्लिश नहीं हुआ तब भी वो उसमें चेंज करवा के फिर आप अप्रूवल सीख करें और सब्सिक्वेंटली फिर आप उसको पब्लिश करें। अगर उस पब्लिकेशन के बाद आ रहा है तो फिर एडेंडम जाएगा उसका। बिल्कुल एडेंडम जाएगा। जी जी ठीक है। अच्छा अगर in case application for listing is refused by the security exchange, the issuer through the consultant of the issue may file a petition before the commission within 30 days of such refusal. Within 30 days आप refusal के आप exchange को लिख सकते हैं कि भाई आपने मेरा, और ये basically अगर PSX लेवल पे मना हुआ है तो आप उसको petition may file before the commission। commission को आप लिख दें कि भाई इन्होंने मेरा जो है ना ये इशू रोक दिया है for this and this reason. The company may issue securities outside Pakistan subject to prior approval of the commission under section 95 of the act and the payment of non-refundable fee of 1 million whatever. Securities of any company established outside Pakistan can be offered for sale to the public under section 87, 88 of the act, reading with whatever, provided that such foreign companies comply with the फॉरेन कंपनीज में तो आई थिंक जितना ही जाए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन कंपनीज का बहुत एक डिफरेंट तरीके से उसको देखा जाता है क्योंकि एक तो इट्स क्योंकि स्टेट बैंक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेट बैंक की 10 अपनी कंप्लायंसेस है इन टर्म्स ऑफ द हैंडलिंग ऑफ डॉलर, तो वो उसमें हर जगह पे वो चीज सुपरसीड भी कर जाती है फॉर दैट मैटर। तो वहां पे बहुत हौच पौच है चीज। लेकिन अगर आपका रिफ्यूजल आता है इनिशियल सबमिशन पे तो आप यू हैव द राइट टू अपील अगेन। सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऑन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड 7H, ये जो जनरल पब्लिक का फॉर्म होता है, जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन का फॉर्म, ये पीछे लगता है प्रोस्पेक्टस के। जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस भेजे आप उसके एंड पे देखिएगा, ये फॉर्म भी है उसके पीछे। जो परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ IPO प्रोसीड इन केस स्ट्राइक प्राइसेस अबव द, अगर देखिए होता ये है कि मैं अगर 400 मिलियन रुपए रेस करने जा रहा हूँ फ्लोर के ऊपर, 40% तक का बैंड ऊपर आ सकता है। मतलब there is a permissible limit of 40% that the issue can go by 40% over and above the floor price। तो उस केस में अगर पैसे ज्यादा आ गए तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? That also needs to be disclosed in the prospectus. The offer size and the allocation of capital to the general public as per the relevant regulation. जो allocation का criteria है बड़ा specifically spell out हुआ होता है उसके अंदर prospectus में, कि book building के अंदर किस तरह allocation होगी, उसके अलावा general public की भी किस तरह allocation होगी। अब मेथड क्या है जी पब्लिक ऑफर के? दो मेथड है जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किए थे। एक मेथड ये है कि फिक्स प्राइसिंग है और दूसरा मेथड ये है कि बुक बिल्डिंग है। बुक बिल्डिंग को ऑक्शन भी बोलते हैं। उसमें जो ऑक्शन के नतीजे में जो प्राइस निकलती है उसको स्ट्राइक बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि वो एक डिमांड और सप्लाई के प्रोसेस के थ्रू निकल कर आती है। अब जो 95% ट्रांजैक्शंस जो अब होती हैं वो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, क्योंकि उसमें स्पॉन्सर के पास चांस होता है कि शायद वो फ्लोर से ऊपर कुछ आ जाए प्राइस, और इनवेरिएबली आ जाती है, नॉर्मली देखा गया है। आपका सवाल यहाँ तक प्लीज। तो इसमें कोई जी
खुरम साहब, इसमें कोई कंडीशन है कि कौन सा स्क्रिप्ट फिक्स प्राइस मेथड पे जाएगा या कौन सा प्राइस बुक बिल्डिंग मेथड पे जाएगा? हु डिसाइड दिस? सर ये नॉर्मली जो है ना कंसल्टेशन के थ्रू होता है, लेकिन जनरली एडवाइजर की ज्यादा से होती है इसमें। अच्छा, अगर आप लगता है कि आप आवाम की अदालत में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं तो बुक बिल्डिंग लोगों को देखा जाता है। अगर आप समझते हैं नहीं यार ये बहुत रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, मुझे तो आज ही पता करना है कि भाई मैं कितना मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो फिक्स प्राइसिंग के थ्रू जाते हैं, क्योंकि फिक्स प्राइसिंग जो ऑफर होती है वो अंडर रिटन ऑफर होती है, उसके बगैर जा नहीं सकता है। तो उसमें तो आपको अंडरराइटर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे फिक्स प्राइस मेथड में, और बुक बिल्कुल ऐसे बिल्डिंग में अंडरराइटर की जरूरत नहीं होती। सर बुक बिल्डिंग में अगर आपका 75-25 स्प्लिट है तो तब तो जरूरत पड़ेगी 25% जनरल पब्लिक पोर्शन के लिए, वरना आप क्या हो रहा है, आप 100% बुक बिल्डिंग में जा रहा है। और होती तो रिटेल तब भी होता है, लेकिन होता ये कि जब वो बिका हुआ 100% होता है तो उसकी अंडरराइटिंग की जरूरत ही नहीं होती। अगर वहां शॉर्टफॉल आता है तो उन्हीं इन्वेस्टरों को दे दिया जाता है जो बुक बिल्डिंग में थे। जबकि फिक्स प्राइस मेथड में आपको अंडरराइटर अरेंज करने पड़ेंगे। जी, issuer shall comply with the following conditions, namely, the sponsors of the issuer shall retain their entire shareholding in a period for not less than 12 months. ये हमने देखा था from the last date of public subscription, or in the case of greenfield project from the date of commencement of COD or production by the company, whichever is later. तो अगर COD का इसमें और सख्ती है ग्रीन शू के अंदर कि अगर उसमें तो डेट ऑफ लिस्टिंग से उसके अंदर COD से कमेंसमेंट ऑफ जो ऑपरेशन है या फिर कमेंसमेंट ऑफ जो है अपना बिजनेस है। The sponsor shall not retain less than 25% of the paid up capital for not less than 3 years from the date of last subscription, और greenfield के अंदर वही वाली कंडीशन है। And they will be kept in unencumbered in blocked account with central depository. ये हम लोग करवाते हैं, स्पॉन्सर के शेयर्स को हम ब्लॉक करवा देते हैं एक CDC के उसमें, ताकि वो बेच ना सके। Subject to compliance with the sub-regulation 1 and 2 and with the approval of the issue executive, the sponsor of the issue may sell their shareholding through block sale. जो अगर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो इसको आप ब्लॉक सेल के थ्रू भी बेच सकते हैं, which will be deemed sponsor for the as any such person and his director sponsors shall comply with the conditions stipulated in regulations 1 and 3 above. The issuer may allot on preferential इसमें ना एम्प्लॉइज के केस में स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि आप ना एम्प्लॉइज को एक सर्टेन कोटा भी अलॉट कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर, ताकि ये ना हो कि अगर वहां कोई कटौती हो जाए तो उनको भी फिर हर्ट हो वो भी। तो इसलिए वो उन्होंने एक कोटा दिया हुआ, प्रोवाइडेड आप वो कोटा यूज करना चाह रहे हैं। एम्प्लॉइज का एक अलग से कोटा है, तो आप एम्प्लॉय के कोटे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगती है, बिकॉज दिस कोटा हैज बीन असाइन्ड बाय लॉ। अगर प्रेफरेंशियल नॉर्मली अगर फिक्स प्राइस ऑफरिंग के अंदर आपको प्रेफरेंशियल एलोकेशन हुई है, मतलब पब्लिक से पहले आपको ये प्रेफर्ड रेट पे हुई है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एलोकेशन। उस केस में आपके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगती है 6 महीने तक। यू कैन नॉट सेल बिफोर 6 months पोस्ट लिस्टिंग। Khurram Saab, when it comes to preferential allocation, can anybody apart from employees, for example, or something, can they be allocated preferential? Yes, they can be allocated preferential shares. अब इसमें लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्रेफरेंस दी गई है तो प्रेफरेंस के केस में उनके शेयर्स को 6 महीने तक ब्लॉक किया जाएगा। Okay. उसे सेल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रेट में भी दी गई है और फिक्स प्राइसिंग का मेथड है तो वो जनरल पब्लिक के शेयर्स भी उस प्राइस से ऊपर नहीं आ सकते। मतलब उस ट्रांजैक्शन की फ्लो सेलिंग जो ऑफर प्राइस है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाटएवर हैज बीन सोल्ड टू द प्री आईपीओ इन्वेस्टर एट अ प्रेफरेंशियल रेट। इट कैन नॉट बी हायर देन दैट रेट। तो फिर तो प्रेफरेंशियल एलोकेशन हुई नहीं ना, अगर वो फिक्स प्राइसिंग में है तो।
नहीं, उसको फिर भी प्रेफरेंशियल एलोकेशन कहा जाता है। उसका रीजन ऐसे कि उसको तो शेयर मिल गए, फर्ज करें यहाँ पे 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको तो फिर 1/10 मिलेगा शेयर। तो अच्छा वॉल्यूम में वॉल्यूम में तो यू वर गिवन प्रेफरेंस, ऑल्दो, लेकिन बुक बिल्डिंग में आप प्रेफरेंशियल एलोकेशन में आप कर सकते हैं, और उस केस में रिस्ट्रिक्शन लगेगी शायद आपके ऊपर, लेकिन आपका फ्लोर प्राइस डिस्टर्ब नहीं होती। फ्लोर प्राइस कैन बी एनीथिंग। अब हमारे पास भी ट्रांजैक्शन अभी चल रही है जिसमें एक सर्टेन इन्वेस्टर आया है रेट के ऊपर, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आवर फ्लोर प्राइस, the price at which we are offering the script to general public. In case of public offer of shares for a greenfield project with balancing BMR, जिसको बोलते हैं balancing modernization and replacement, the public offer of shares shall be in accordance with the financial plan approved by the board of directors. It is very simple. It has to be the case in every transaction. It has to be approved by the BOD. The financial plan shall be disclosed in the prospectus along with the rationale. The issuer, before making the public offer, shall provide commission certificate from consultant confirming viability of a financial plan, various components of the financial plan, shares allocated to sponsors, land for a project, whatever, or irrevocable letter of LC has been established in terms of reporting any plan and property and equipment, whatever. The consultant of the issue shall verify the implementation of the plan as disclosed in the prospectus by obtaining a report from the independent valuer. So we will also have to seek an independent report. We are not expert in terms of determining whether this specialized project will be able to get started in time. So we will have to seek a technical advice who will tell us that yes, in 6 months' time, this plant and machinery will be up and running. The issuer shall submit progress report. So even after listing, every quarter the exchange requires a progress report that you took this much amount of money, and you promised that after 3 months or after X number of months the project will be here. You requested to kindly tell us the status. So invariably you will have to tell the status to the PSX so that they can gauge whether the funding has been rightly used or whatever it's being rightly used. In addition to the condition as mentioned in Regulation 5, issuer shall comply with the following condition. Issuer shall decide the offer price in consultation with the consultant to the issue. The consultant to the issue in support of the offer price set by the issuer shall provide an under titled valuation. Valuation section आप लोग please पढ़ लीजिएगा prospectus के अंदर, बड़ा important section है ये, हर prospectus के अंदर होता है ये, आप लोग देखिएगा कि उन्होंने किस तरह उसको justify किया उसकी value को और किस तरह value किया है. The public offer under the fixed price shall be fully underwritten. ये समी साहब ने highlight किया था point, जो fixed pricing वाला जो है वो it has to be 100% underwritten. बिल्कुल. An issuer shall issue shares to the general public at the price not higher than the price at which the shares were issued to an investor during 6 months prior to the date of public. ये fixed pricing के अंदर होता है. मैंने आपको बताया था ना जी law कि जनरल पब्लिक को लास्ट 6 महीने के अंदर किसी को भी बेचा हो उस डेट से पहले वो उस प्राइस से ज्यादा ऊपर जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते आप. जो फ्लोर प्राइस है उसके खिलाफ नहीं, अगर आपने आप लिस्टिंग में लेके जा रहे हैं लेकिन आपने पिछले 2 महीने पहले आपने एक बंदे को 20 रुपए का शेयर बेचा है तो आप 20 रुपए से ऊपर पब्लिक को नहीं बेच सकेंगे. मगर खुरम साहब रिसेंटली एक जेम बोर्ड पे लिस्टिंग हुई है जो लॉजिस्टिक्स की, उसमें आई थिंक ऐसा इसके लाइक द इशू हैज बीन काउंटर टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज वेयर फॉर एग्जांपल people were inducted into the board. A few companies floated it at a fixed price
offer of 65 rupees a share. ये 6 महीने हो गए थे उसको लास्ट इशुएंस को. I'm not sure, मगर जेम बोर्ड की लिस्टिंग थी. नहीं वो सही है, मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे लगता है 6 महीने हो गए होंगे. अच्छा, quite possibly then. Quite अगर possibly. देखिए अगर 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है तब तो नहीं हो सकता, ये फिर तो नॉन कंप्लायंस है. अगर Okay. उसके ऊपर निकल गया फिर तो ये इट इज अंडर कवर्ड अंडर द लॉ. हाँ, but अच्छा, there's no cap onto what the difference can be ना after 6 months. तो क्या non-compliance with any of the condition imposed by the Security and Exchange Commission while granting approval for issuance shall be considered as violation. Non-compliance, obviously, non-compliance can be anything. Consultant to the issue shall immediately place a copy of the approved prospectus on its website, जो issuer की website होती है, और उसके अलावा Security and Exchange Commission की होती है, और PSX की. SECP पे नहीं लगता कुछ भी. Prospectus shall be circulated, issued, published not less than 7 days and not more than 30 days before the commencement of subscription period for the retail portion. जो जनरल पब्लिक का पोर्शन होता है ना, वो उस 7 दिन के अंदर अंदर किस चीज के द prospectus should be जो आपका बुक बिल्डिंग पोर्शन कंक्लूड होता है उसके 7 दिन के बाद आप यू विल मिनिमम 7 days और 30 days मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर आपने रिटेल करना होता है. The prospectus or abridged prospectus as approved shall be published in at least English, one English and one Urdu newspaper. ये तो बड़ी जर्नल की कंडीशन है. इंग्लिश भी छपेगा और उर्दू भी छपेगा, और ऐसा होना चाहिए जिसकी सर्कुलेशन हो. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा न्यूज़पेपर पकड़ लिया जो सिर्फ सदर में बिक रहा हो या फॉर दैट मैटर, और बस उसकी सर्कुलेशन सदर तक ही हो. It has to be like Pan Pakistan. The general public shall submit an application for subscription of the shares in physical form or electronic. अब normally electronic ही हो गई है, 99% electronic होती है. The application shall be duly accompanied by cross check. अब obviously आपको पैसे वैसे भी जमा कराने पड़ते हैं to all the bankers जो कि prospectus में लिखे होते हैं. Within 10 working days of the closure of public subscription, आपको और shorter the shares shall be allotted. आपको फिर shares allot हो जाएंगे और आपके shares account में credit हो जाएंगे. The issuer and consultant to the issue shall maintain record of the issue for a period of at least 10 years from the हमें as CTI we will have to maintain record of 10 years, up to 10 years. अभी कोई सवाल है आप लोग का इसके ऊपर? गुरम साहब, ये पॉइंट नंबर 7 में जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर द रिटेल पोर्शन ऑफ द इशू, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा क्लियर कर देगा. अच्छा, कौन सा वाला पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर 7. The prospectus shall be issued. जी जी, ये जो रिटेल पोर्शन ऑफ द इशू वाली बात है ना, ये थोड़ी सी समझ नहीं आई. देखिए जब प्रोस्पेक्टस छपता है ना, जी जी, ये लिखा हुआ है द प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड, सर्कुलेटेड एंड पब्लिश्ड नॉट लेस देन 7 days and not more than 30 days before commencement of the subscription period for the retail portion. अब होता ये है कि जो आपका रिटेल पोर्शन है ना, ये इसकी पब्लिकेशन के मिनिमम 7 days के अंदर हो सकता है या फिर मैक्सिमम 30 days के अंदर हो सकता है. ये लिमिट दी है बेसिकली डेज की. जब आपका प्रोस्पेक्टस छप गया उसके विदिन 7 days आपने जो है, देखिए ये प्रोस्पेक्टस छपता किसके लिए है? छपता रिटेल वालों के लिए है. रिटेल वालों के लिए, टू बाय द शेयर्स और टू फॉर व्हाट पर्पस बेसिकली? सॉरी मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रही रोज आप?
रिटेल वालों के लिए पर्पस क्या होता है? इस वाले इस फ्रेज का मतलब थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, रिटेल पोर्शन ऑफ द इशू देखिए का। ये बेसिकली क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो आपका रिटेल पोर्शन होता है ना, रिटेल पोर्शन, ये पब्लिकेशन के या तो रिटेल पोर्शन जो पब्लिकेशन होता है प्रोस्पेक्टस का, उसके मैक्सिमम 7 डेज, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए रिटेल पोर्शन, जो जनरल पब्लिक का पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये जनरल पब्लिक के पोर्शन की बात हो रही है, मतलब ये इन्वेस्टर पोर्शन की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये ठीक है। जनरल पब्लिक के पोर्शन की बात हो रही है कि जनरल पब्लिक का पोर्शन जो है ना, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा देखिए, फिक्स प्राइस, ये फिक्स प्राइस मेथड है, इसके अंदर कोई बुक बिल्डिंग नहीं होगी, ये पूरे का पूरा एक ही टाइम पे ऑफर होता है। तो जिस दिन मेरा प्रोस्पेक्टस छपा, उसके 7 डेज के अंदर अंदर भी हो सकती है सब्सक्रिप्शन डेट्स, और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर, 30 डेज से ऊपर जा नहीं सकते और 7 डेज से पहले कर नहीं सकते। ओके, गॉट इट, थैंक यू। After approval of the prospectus by the commission, the consultant to the issue shall seek from the PSX the dates for public submission of prospectus and subscription period. ये फिर हमें डेट्स लेनी पड़ती हैं जब अप्रूवल हमारे हाथ में आ जाता है SECP से, और हम फिर PSX से डेट्स लेते हैं। नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द कंडीशन, ऑब्वियसली वो वायलेशन कहलाएगी। कंसल्टेंट को मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ता है, अपनी भी, क्लाइंट की अपनी भी, और PSX के ऊपर भी लगता है। The prospectus shall be issued, circulated, ये आपको हमने कर लिया। The prospectus or abridged prospectus or approved by the shall be published in at least one English, और मैंने आपको बताया जिसकी सर्कुलेशन हो और दोनों वर्जन में छपता है। The general public shall submit an application, जो एप्लीकेशन जमा कराएंगे और अपनी पेमेंट भी जमा कराएंगे उन बैंकों में जो कि प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज है। Within 10 वर्किंग डेज ये पूरी एलोकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और लोगों को शेयर मिल जाने चाहिए। The issuer, the consultant or to the issue and underwriter shall maintain record, हमने 10 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है as consultants। अच्छा जी, ये what are the conditions for offer for sale of shares through book building? अब हम फिक्स प्राइसिंग से बुक बिल्डिंग पे आ गए। The bidder may be allowed to place bids for 100% of the offer size and the strike price shall be at the price at which the 100% of the offer price is subscribed. However, successful bidders will be allotted and issued only 25/75। देखिए होता पता है क्या है इसमें, देखिए दो मैंने आपको वेरिएंट बताए थे। एक बताया था कि पूरे का पूरा 100% बुक बिल्डिंग से आ रहा है, उसमें फिर कोई रिटेल पोर्शन नहीं होगा। दूसरा एक होता है 75/25, रिटेल पोर्शन दोनों में होते हैं, पहले वाले में भी होगा, दूसरे में भी होगा। रिटेल पोर्शन को आप ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि बाय लॉ SECP और PSX वांट्स के रिटेल पोर्शन डिसएडवांटेज नहीं हो। लेकिन पहले वाले मेथड में जहां पे आप 100% बुक बिल्डिंग के अंदर ऑफर कर रहे हैं, उसमें रिटेल पोर्शन को अंडरराइट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका बिक चुका होता है पूरा बुक बिल्डिंग में। एस्यूमिंग अगर कोई अंडर सब्सक्रिप्शन आती है जनरल रिटेल पोर्शन में, तो ऑटोमेटिकली बुक बिल्डिंग में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है सारा का सारा अंडर सब्सक्राइब पोर्शन। However, दूसरी Danish, you have a question? No, none at Okay. all. Okay. So दूसरा होता है कि आपका 75/25 है, मतलब हम बेच ही 75% रहे, तो उसका मतलब 25% में जनरल पब्लिक बेचना है, तो उस केस में वो अंडरराइट कराना पड़ेगा हमें। Uruj, I'm specifically asking you, did you understand this? Yes, got it. Khurram Sahab, I have one question to ask you on account of a small piece of confusion that I have. On your slide, you say the strike price shall be the price at which the 100% of the offer size is subscribed, right? So, can you perhaps cite an example and explain this point to us? Because
So for example, if I understand that 75% of the portion would have been मैं आपको underwritten example during दे the देता book हूँ। building stage, मैं आपको right? एग्जांपल दे देता हूँ Assuming it's a successful IPO. देखिए हमारे पास assuming we are selling 100,000 shares through book building, 100% book building, okay? तो होगा ये, मैं पूरे 1 लाख शेयर्स की बिड्स लूंगा। अच्छा, लेकिन मैं उनको प्रोविजनली अलॉट कहते हैं, इसको प्रोविजनली, इसको कहते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट। उनको मैं 75% अलॉट करूंगा, 25% मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जनरल पब्लिक में अलॉटमेंट के लिए जाएगा, रिटेल पोर्शन को। अब एस्यूमिंग के रिटेल पोर्शन में से पूरा सब्सक्राइब नहीं होता, 10% सब्सक्राइब होता है, तो जो 15% बचा वो भी इनको फिर अलॉट हो जाएगा सारे का सारा। तो टेक्निकली फिर होगा कि अब बुक कैसे बनेगी, 85% बुक बिल्डिंग वाले इन्वेस्टरों को मिलेगा और 90% और 10% उनको मिल जाएगा रिटेल को। Danish, did you get my point? But at what price? Same price. The price cannot Yes, be. but at what price? The price which was determined during the book building. Okay. ये जो प्राइस जो डिटरमिन होगी, जहां पे आपके 1 लाख शेयर बिके, प्राइस तो वही डिटरमिन हो गई। उसमें से आपको 75,000 शेयर की एलोकेशन हुई होगी और 25,000 जो है रिटेल में चले जाएंगे। अगर रिटेल में पूरे नहीं उठते, अगर 10,000 उठते तो 15,000 वापस आपके यहाँ पे आ जाएंगे और अलॉट में, क्योंकि 100% बिका हुआ होता है माल, उनकी कंसेंट भी होती है, तो फिर इनको अलॉट हो जाते हैं वो। Okay, but we've not discussed so far how it is priced, right? So far we've not discussed that. Is that fair? Price in terms of the floor price determination? The price at which a share is going to be issued. Like, how do we price a particular IPO, na? In that sense. No, we have not covered that. We have not covered that. Okay. Okay. समी साहब, आपका कोई पॉइंट था? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बुक बिल्डिंग में जो प्राइस डिटरमिन होगी रिटेलर के लिए यानी जनरल पब्लिक के लिए भी वही प्राइस होगी ना फिर? सर बिल्कुल सर, एक 4 आने का भी फर्क नहीं होगा। अच्छा, तो सेम प्राइस। पहले पुराने जमाने में, मैं तो सर 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, तो पहले you had the provision to either sell at the same price as you did to the book building investor, or you can sell at a lower price to the general public, either at the same price or lower price. You cannot charge a higher price to the general public. सही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है the bidder shall also, ये part of the book building form में दिया हुआ होता है कि the bidder shall give an undertaking along with the application that they will subscribe for the unsubscribed shares by the retail investor, and the remaining bid money would be remain deposited, blocked till allotment of unsubscribed shares by the retail investor. In case the retail portion is fully subscribed, the bid money shall be returned and refunded. Obviously वो पैसे हमें वापस करने होते हैं जितने भी उनके बच जाते हैं, और किसी से अगर पैसे मंगवाने होते हैं उनसे मंगवाते हैं हम पैसे। ठीक। Book building shall be portion shall be underwritten by one or more book runner. जितने बुक रनर है वो अंडरराइट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बुक बिल्डिंग के अंदर समझने की चीज ये है कि ये अंडररिटन नॉर्मल अंडरराइटिंग नहीं होती है, ये टेक्निकल अंडरराइटिंग होती है। टेक्निकल अंडरराइटिंग क्यों बोलते हैं इसको हम? ये इसलिए बोलते हैं कि अगर खुदा ना करे बुक बिल्डिंग के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो आई एम नॉट obliged टू बाय दोज शेयर्स। ओके, तो एंटायर ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड ऑफ। However, अगर एक बंदे ने पैसे 25% जमा कराए, देखिए इंस्टीट्यूशन 25% जमा करा सकता है मैक्सिमम मिनिमम, उसने 75% नहीं दिए पैसे अपने, तो देन इन दैट केस इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय एनी एग्जिस्टिंग बिडर,
then I am obliged to pick those shares up under this technical underwriting agreement. ये आप लोगों को समझ आया जी? Khurram Sahab, so for example, like if we speak in terms of practicality, the leading book runner of a transaction or the consortium that underwrites a particular capital markets transaction, they have no skin in the game, in the sense they're not obliged to buy in case of lack of interest in a particular script. No. Achha, what if there is, for example, 5 or 10, 15, 20% subscription and the rest is not subscribed? So for what I mean to say is, what if there is interest in this, but not sufficient interest in this? Transaction called off. Achha, okay. Thank you. देखिए, बुक बिल्डिंग जो है ना, बुक बिल्डिंग में ऑक्शन होती है. ऑक्शन के अंदर अगर वो इतनी डिमांड आई नहीं तो ऑक्शन तो पूरी नहीं हुई. डिमांड एक प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ उस चीज का. उसका मतलब ये है कि the process in itself was incomplete. So hence the transaction is called off. Okay. The issue अगर and ये the नहीं होता है तो फिर क्या? अगर ऑप्शन नहीं होता है तो उसके बाद क्या स्टेप लिया जाता है? सर इसके बाद जो है आप उसको दिलासा दें अपने क्लाइंट को कि नहीं हो सकता. मतलब रिफंड कर देंगे उनको जो पैसे जो हैं, मतलब सर कुछ फीस हमारी नॉन रिफंडेबल होती है. कुछ जो फीस अगर उसने दे दी है इतनी ज्यादा तो वो फिर शायद रिफंड हो जाएगी. लेकिन इट डिपेंड्स. लेकिन सर इट इज अ रेयरिटी. इट डज नॉट हैपन दैट वे. हम जब किसी का डिलिजेंस करते हैं ना तो हम बहुत चूजी हैं मैंडेट सिलेक्शन के अंदर. तो हम शुरू से ही इस तरह डिटरमिन कर लेते हैं कि वेदर विल बी एबल टू सेल इट और नॉट. हम पहले अपना एग्जिट प्लान कर लेते हैं बिफोर वी एक्सेप्ट द मैंडेट. But Khurram Sahab, I don't think you have to console the client. Couldn't you turn around and tell them, let's do a fixed price IPO instead? देखिए, अगर कोई चीज बुक बिल्डिंग में नहीं बिक रही है तो फिक्स प्राइसिंग में तो मुझे पड़ जाएगी ना फिर. Okay, yeah, in that sense, yes. देखिए, एसेंशियली उसको बेचना है. अगर मैं या तो मैं पब्लिक को बेचूं या अंडरराइटर को बेचूं, तो अब अंडरराइटर को बेचना भी इतना आसान काम थोड़ी है. वो तो खुद भी कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है. Okay, thank you. अच्छा, the issuer and consultant to the issue shall provide names and unique identification of all their. देखिए, मैं जो है ना, I am not allowed to participate as financial advisor. I am not allowed to participate as financial advisor in the transaction, nor my team members, nor my CEO, and a lot of other associates which are connected with the transaction. So all our NICs get published in the prospectus. I'm sure there is a dedicated section which kind of obviously looks at. There is a section in the prospectus. If I can show that section to you, I'll just मैं वो document निकाल के आपको दिखा देता हूँ. एक second जी. Let me just pull this document out.
ये आप देख रहे हैं, ये दिस इज प्रोस्पेक्टस. हम currently we're working on this transaction. हम gas and oil, it's the third largest OMC in Pakistan. We're taking this company for listing. So आप ये देखें, इसमें जो related employees हैं of the lead managers and book runner, it is clearly mentioned. So we have to mention all these employees that they will not be able to participate in the transaction. They are blocked. इसी तरह अगर आप ऊपर देखें, ऊपर भी क्लाइंट के कुछ लोग हैं जो कि सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और सीएफओ है, डीजीएम फाइनेंस है, और डीजीएम इंटरनल ऑडिट है. दे आर आल्सो ब्लॉक्ड अंडर रिलेटेड पार्टीज. को देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच अ जनरल पब्लिक डज नॉट हैव. सो एसेंशियली I am at a significant advantage in terms of decision-making process, which the exchange and the commission wants to discourage. Okay. Let's go back to the अच्छा जी, एसोसिएट्स जो है ना, एसोसिएट्स को वो अलाउ करता है, लेकिन उस टोटल एसोसिएट की कैटेगरी कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बुक बिल्डिंग साइज. तो उस केस में भी वो एक छोटी सी अलाउ करता है, उसके अंदर परमिशन देता है. अच्छा, in addition to the condition mentioned above, the issue shall comply with the following. The offer size is not less than 20. देखिए, मिनिमम जो है ना बुक बिल्डिंग के अंदर आपको 25 मिलियन शेयर ऑफर करने हैं. 25 मिलियन शेयर, अमाउंट नहीं, 25 मिलियन शेयर, ये याद रखें. और हायर, the company whose shares are issued through book building shall not be provisionally listed. Okay. What does the provisional listing mean? Khurram sir, what does a provisional listing mean? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड. मतलब ये क्या है, ट्रांजैक्शन पूरी खत्म होती है, प्रोविजनली अलॉट होते हैं, प्रोविजनली लिस्ट नहीं होते. प्रोविजनली अलॉट होते, पहले पूरी ट्रांजैक्शन पूरी बिक जाती है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो लिस्ट होता है. तो देयर इज नो सच थिंग एज प्रोविजनल लिस्टिंग. प्रोविजनल एलोकेशन जरूर होती है, प्रोविजनल लिस्टिंग नहीं होती. Maximum 75% of the offer share is allotted to book building portion, and the remaining 25% मिनिमम जो पब्लिक को देना होता है वो 25% देना होता है. इससे कम नहीं दे सकते आप, इससे ज्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते. और जो रिटेल पोर्शन है पब्लिक का, अंडर रिटर्न होना चाहिए. लेकिन अगर बुक बिल्डिंग ही 100% की है तो ये फिर अप्लाई नहीं करेगा. Khurram sir, one quick question here. Yeah, if for example you're doing a 75-25 की listing, ठीक है, तो this 25% has to now be, is this also technically underwritten, or this has to now be underwritten by the proper underwritten? Okay, thank you. Okay, so the associate मैंने आपको बताया था, in aggregate cannot be more than the associate of consultant. अच्छा, ये associate of the company था, वो ये associate of the consultant and the issuer and the book runner in aggregate cannot be more than 5%. तो different categories define की हुई हैं. एसोसिएट ऑफ द इशूअर जो है वो 10% है, और एसोसिएट ऑफ द कंसल्टेंट 5% है. जी बिल्कुल. The consultant to the issue shall ensure the issuer has entered into a tripartite agreement with the
हमारा जो है ना एक एग्रीमेंट होता है बुक बिल्डिंग रन करने का, और वो हम लोग साइन करते हैं उसके साथ PSX के साथ। और इसके अलावा जो हमारा एक और भी एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग विच स्पेल्स आउट द all the scope and the duties and the responsibilities between company PSX and us. The issuer, the consultant of the issue, the underwriter and the decision shall maintain a record of the issue for at least 10 days. ये हम पिछले पढ़ चुके थे कि 10 साल के लिए मिनिमम हमें होल्ड करना है इस चीज को, रिकॉर्ड को सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बिल्कुल। The following procedure shall be adopted for book building process. पहले issuer decide करेगा floor price. दानिश ये अभी हम floor price का mechanism देखेंगे किस तरह सेट होती है। I'm sure you're very eager. You would want to learn that. Yes. I think this is probably the non-regulatory part of the Yes. part of the course. So I think this is like this is between you and the CTI. Okay, the issuer shall decide the floor price in consultation with the CTI, provided that the upper limit of the price band should not be more than 40% of the floor price. 40% गवर्न करता है सिस्टम में 40% से ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं होती है। The floor price और determination इसका कवर इसका वैल्यूएशन सेक्शन में दिया होता है, उसमें जस्टिफिकेशन आपने दी भी होती है कि why you think the company is worth this much at the floor price. After approval of the prospectus by the commission, the CTI shall seek from security and exchange the dates हम seek करेंगे और उसको फिर subsequently आगे बढ़ जाएंगे बुक बिल्डिंग के लिए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस होगी तो obviously that non compliance has to be then considered. It will be considered as a violation. Everything has to be very, very dotted and everything has to be followed. Remember, this is a very, very serious affair because you're managing public's money. Public के पैसों के लिए जो है ना हमारी गवर्नमेंट भी हरकत में आ जाती है और सब लोग हरकत में आ जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Everybody realize this importance. So as financial advisors, we always try to ensure that we remain within the bounds of whatever the laws are. कभी कभार छोटी मोटी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन then we have to do exception reporting to PSX and SECP both. उनको explaining the circumstances, assuming कि यहाँ पे कोई किसी की remember there was a Benazir incident, everything got to a halt. तो अगर हमारा प्रोसेस भी इस तरह सैबोटाज हो जाता है, इस तरह का कोई फोर्स मेजर हो जाता है, या जो पाकिस्तान इंडिया का एक थोड़ा सा वॉर यूफोरिया में चले गए थे, तो इस तरह की कोई चीज हो जाए जो कि नेचुरली हम कंसीव नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें उसको बस बतानी पड़ती हैं, बट ऑब्वियसली दे आर आल्सो वेरी कंसिडरेट। The prospectus and the abridged prospectus as approved by the commission shall be published. मैंने आपको बताया it has to be published in the newspapers both English and Urdu. ये 7 days वाली कंडीशन जिस फिक्स प्राइस में भी थी इसमें भी है, बुक बिल्डिंग में भी है, और copy of the prospectus has to be placed on the website of the issuer, CTI and PSX. The issuer shall publish the at least 1 day before the commencement of registration of the bidder by the book runner. So it has to be published before the book building days. The bidding shall be conducted electronically. ये पूरा प्रोसेस जो है ना डिजिटल है, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज्यादा कोई फिजिकली इसमें चीजें आ रही होती हैं, अब तो बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया इन द सेंस कि आप मुझे अपना बिड की कॉपी स्कैन करके भेज दें, अपना अगर आपने पैसे जमा करा दिए बैंक के अंदर उसकी डिपॉजिट से भेज दें तो आई विल रजिस्टर यू, या फिर मेरे सेंटर में फिजिकल सबमिशन कर दें आप बिड की और अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट।
Floor price shall not be revised once the prospectus has been approved by the commission. फ्लोर प्राइस एक मतलब अप्रूव हो गई, उसमें कोई भी चीज, वैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी चीज नहीं चेंज हो सकती, तो उसका नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव है एक्सचेंज का और कमीशन का, उनके परमिशन के बगैर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर। The registration of the bidder by the book runner shall commence at least 3 days working days before the start of the bidding period. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है ना आपका 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, जब बिडिंग पीरियड स्टार्ट होती है। बिडिंग पीरियड आप 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। द बुक रनर शैल एटलीस्ट एस्टैब्लिश, अगर आप प्रोस्पेक्टस खोलते हैं ना, प्रोस्पेक्टस अगर आप खोल लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट अगर आप प्रोस्पेक्टस अपना कोई और खोल लेते हैं जो पब्लिश हो चुका हो, अगर आप देख लें जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है हमारी, लिखा हुआ है कि 10 जून से स्टार्ट होंगी और 16 जून तक चलेंगी। 10 जून जो है, इट हैज टू बी 3 days, मिनिमम 3 वर्किंग डेज बिफोर द बुक बिल्डिंग। तो आप देखें बिडिंग डेट जो हमारी है 15-16 है, और बिडिंग हमारी स्टार्ट हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 10 जून से। तो अगर आप 10 जून 2021 निकाल लें, थर्सडे है, तो 10 तारीख को, 10 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख, ये 3 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन के। इट हैज टू बी 3 days बिफोर द बुक बिडिंग स्टार्ट। सो बिडिंग आ गई 15 और 16 है। इफ एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ, सबको समझ आ रहा है जी? बिडिंग पीरियड जो है 15 एंड 16 जून जी जो परम था, जी जी जी, बिडिंग पीरियड है 15 और 16 जून। अच्छा, बिल्कुल। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टर वो पहले होगा, मतलब वो 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, 3 दिन पहले, 3 वर्किंग डेज। ठीक। अच्छा जी, ये कहता है कि बुक रनर शेल एटलीस्ट एस्टैब्लिश बिड सेंटर्स इस्लामाबाद, ऑल प्रोविंशियल कैपिटल, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैंकरों के नेटवर्क को यूज करते हैं, बैंकर जो हमारे साथ एंगेज होते हैं उनके नेटवर्क को हम यूज करते हैं। द बुक रनर शेल प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिडर, एंड ये हम लोग को सारी डिसिमिनेट करनी होती, सारी इंफॉर्मेशन टू ऑल द bid collection centers कि how this entire process is going to be handled.
अच्छा जी, the book runner shall make necessary arrangement for receiving bids and instrument evidencing payment of the bid money. ये मैंने आपको बताया, we need to maintain each and every document as part as book runner. इसके पोस्ट बुक बिल्डिंग ऑडिट भी खुल जाता है, आपको ऑडिट कराना पड़ता है बाय कमीशन कभी भी आपको नोटिस दे देता है कि भाई मुझे इस बिल्डर की बिड दे दो, वो कंप्लायंसेस चेक करते हैं अपनी कि उन्होंने फॉलो किया प्रोसेस को नहीं किया. द बुक रनर शैल पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू एंटर डिटेल्स इंक्लूडिंग द मैक्सिमम बिड अमाउंट. तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोग लेते हैं PSX से, उसके अंदर सारे चेक्स बिल्ट इन हुए होते हैं. एक टाइम पे 10% फ्लोर इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस के 10% से ऊपर कोई चीज जा नहीं सकती. वो बैंड जो है वो 10% के अंदर मूव करता है. वो 10% की इटरेशन के बाद वो मूव करते करते 40% तक जा सकता है मैक्सिमम. जब वो सिस्टम में मैं उसकी डिटेल्स डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी उसने ईमेल आईडी दिया हुआ होता है उसको उसमें पासवर्ड चला जाता है, पासवर्ड और यूजर नेम. यूजिंग दैट पासवर्ड एंड यूजर नेम दे आर एबल टू एंटर देयर बिड. खुरम साहब, ये जो 10% से 40% की बात आपने की, could you please explain this with an example if that's okay? देखिए, अगर फर्ज करें एक शेयर है जिसकी फ्लोर प्राइस 50 रुपए है, it can potentially go up to 70 rupees. However, जब अगर अभी बुक बिल्डिंग स्टार्ट हुई है तो ये अभी 50 से 55 तक जा सकता है. जब तक 55 पे इतनी बिड्स नहीं आ जाती तब तक वो 55 से ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो 55 का 10% आगे मूव करेगा. ये अल्टरनेटिव प्रोसेस आगे चलता है. But Khurram sahab, what happens if, for example, let's say as soon as the book building starts, let's say I'm the first investor who sees real value in this at this price, and I put my bid in for 51 rupees, and then there's a flurry of other bids that comes in, all at 55. So will I then be allocated shares because I was the first one to request for them, or does my bid automatically basically get written off? इसमें बड़ी क्लियर सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेशन पे, जिसकी प्राइस सबसे ऊपर है वो कट ऑफ का पार्ट है, उसी को मिलेंगे. अगर प्राइस ऊपर आती है और आपकी बिड नीचे थी तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे. अच्छा, तो बेसिकली अच्छा, that's why the investor is incentivized to bid as high as possible. Okay. पहले होता था, पहले टाइम बेस्ड भी होता था कि अगर इश्यू में कि आपकी भी 55 है मेरी भी 55 है तो फिर वो सिस्टम देखता था कि किसने पहले लगाई थी बिड. अब प्रो रेटा हो जाता है. अच्छा, ओके, थैंक यू. अच्छा, the bidding shall remain open for at least 2 working days. 2 वर्किंग डेज के लिए खुली रहती है. 3 दिन रजिस्ट्रेशन, 2 दिन बुक बिल्डिंग. The book building process shall be considered as cancelled if the issuer does not receive bids for the number of shares allotted under the book building portion, and shall the same be immediately intimated by the book runner and consultant to the commission, exchange and designated institution जो भी आपके साथ engaged थे. All the bankers shall be advised by the book runner for refunds, unblocking of bid money. The margin will be unblocked, refunded, whatever within 3 working days. आप लोगों को समझ आ गया पॉइंट ये? जी जी. अगर डिमांड नहीं है तो बुक बिल्डिंग कैंसिल हो जाएगी. किसी ने अगर पैसे जमा कराए हुए हैं तो उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे Within 3 days, 3 working days. 3 working days. The book building process shall be considered cancelled if the total number of bids is less than 40 था मेरे ख्याल से, less than 100. अब ये 40 है. If you have, अगर आपकी नंबर ऑफ शेयर्स ही पूरे हो जाते हैं लेकिन बिडर लेस देन 40 है तब भी कैंसिल हो जाएगी. The book runner shall ensure that subscription money received against the bids shall not be released to the issuer until all the shares are
credited under the retail portion, issuance of NOC by the Security and Exchange Commission. ये एक्सचेंज कमीशन से मैंने NOC ले लिया है और मैंने सारे शेयर क्रेडिट करा दिए, इससे पहले मैं पैसे रिलीज नहीं करवा सकता। अच्छा, जहां तक हमने जितना भी पढ़ा है, विल टेक पॉज फॉर लाइक 2 मिनट्स। सबको कोई समझ आ रहा है या कोई मतलब कोई पॉइंट है जो कि वी कैन डिस्कस? Khurram Saab, perhaps if you can share the slideshow at the end of this, so we can all reflect on it individually afterwards as well. I would love to. I would love to, but the problem is that I am a little restricted by IFMP. I think Shahrukh will be a better person to kind of ask about the dissemination of information. Sure. Thank you. Yeah. Okay, so what is the procedure for bidding? So bid can be placed at a limit price or a step bid. दो ही तरीके हैं बिड लगाने की। या तो आप लिमिट लगाएं, लिमिट मतलब कि मुझे इस प्राइस पे इतने शेयर चाहिए। अगर 50 रुपए का फ्लोर है, आपने लगाई बिड कि मुझे 51 पे इतने शेयर्स चाहिए। स्टेप बिड क्या है? स्टेप बिड ये है कि आप लिखते हैं कि मुझे 55 पे इतने चाहिए, 53 पे इतने चाहिए और 51 पे इतने चाहिए। ये स्टेप है। बट एवरी स्टेप, अभी आप लिखें, अब लिखा हुआ है द मिनिमम साइज ऑफ द लिमिट बिड कैन नॉट बी लेस देन 2 मिलियन। अब ये 1 मिलियन हो गया है, ये 1 मिलियन हो गया अब लेटली। So I would also request Shahrukh to update these numbers before he shares this with you. जी ठीक हो गया। तो उसमें आपका जो बिड है, बिड स्टेप बिड भी कैन नॉट बी लेस देन 1 मिलियन एवरी बिड। ये थोड़ा लिमिटेशन है इसकी। तो ज्यादातर लोग 95% या 99% लिमिट बिड ही यूज करते हैं। स्टेप बिड इज लाइक टू एक्सोटिक। ओके, द बुक रनर शैल बी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेट करना है कि मतलब वी हैव टू इंश्योर दैट द बिडिंग फॉर्म इज इन ऑर्डर, it is in order, it has all the check information available which we require or which we require for reporting purposes. सही है ना? और पैसे भी आ चुके हैं उसके। In case of institute, the book runner may accept the bid with a minimum. अच्छा देखिए, H&WI के केस में I am obliged to take 100% funds at the time of bid. Institution के केस में मुझे 25% तक मैं ले सकता हूँ, या उससे कभी। अब तो ये भी है कि उसके अंदर हम जो है थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के केस में तो उसमें लॉ भी अलाउ करता है उनको 25% तक, या वो ऊपर 100% खुद ही देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम मिनिमम 25% भी चला सकते हैं। So once the bid, receipt of bid application, the book runner shall enter the bid into the system and issue to the bidder an electronic receipt. ये इलेक्ट्रॉनिक रिसीट टेक्निकली ईमेल होती है, अब इशू ऐसे नहीं होती। आपका द मोमेंट योर बिड गोज इनटू द सिस्टम, आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड और यूजर नेम चला जाएगा, और उसके बाद देन यू कैन यूज दैट टू प्लेस योर बिड। द बिडिंग शेल कमेंस 9 AM एंड क्लोजेस एट 5 PM। ये सिस्टम PSX प्रोवाइड करता है, लिंक उसका PSX की वेबसाइट पे भी होता है, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। The bid shall be collected and entered into the system by the book runner till 5 PM, the last date of bidding process. ये आखिरी दिन 5 बजे तक चलता रहता है प्रोसेस। The bidder can revise up to till 5 PM on the last day of the, ये रिवीजन बिल्कुल एंड तक चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, it will stop at 3 PM लास्ट डे। उसके बाद कोई नया बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता। The book runner may reject any bid for, ये मेरा राइट है एज बुक रनर, मैं किसी को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन।
हम इसकी ना बुक जिस तरह वो होती है, मैं आपको बुक दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। अब देखिए, ये मैं सिटी फार्मा एक कंपनी थी जो कि बुक बिल्डिंग के थ्रू लिस्ट हुई थी। इन्होंने 72,692,000 शेयर्स ऑफर किए थे बुक बिल्डिंग के थ्रू। फ्लोर प्राइस थी 28 रुपीज। नोबडी कैन प्लेस अ बिड लोअर देन 28 रुपीज। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे ऊपर का रेट होता है 36, यहाँ पे इन्होंने डबल डेसिमल लगाया नहीं, शायद ऊपर ही होगा ये 36.8 समझे, एस्यूम कर लेते हैं, जो 7.4 मिलियन शेयर की बिड है। उसके बाद 36.72, ये 5.2 मिलियन शेयर की बिड है, तो एग्रीगेट होगा 12.2। इसी तरह ये नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, और कहाँ पे ये कट ऑफ बनेगा आपका, जहां पे $72.6 मिलियन शेयर्स पूरे हो जाते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है। ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस के अंदर मैं देख लेता हूँ, इन्होंने गलत कैलकुलेट किया हुआ है। ये मैं आपको सही वाला दिखा देता हूँ, रुके। अच्छा जी, ये देखें, हम ये कंपनी थी सिस्टम्स लिमिटेड। हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने थे? 9.7 मिलियन शेयर्स। सो स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशन ए से, उसने 40 पे बिड लगाई। पहले ये बैंड नहीं होता था, ये वाला बैंड नहीं होता था, नहीं, खैर सिस्टम के टाइम पर आ गया था बैंड। ये 70% का बैंड लगा हुआ था उस पर, 40% का बैंड बाद में आया है। हमें बैंड मिला था 70% का उसमें। तो 40 रुपीज पे एक इंस्टीट्यूशन ने बिड लगाई, वो तो उसको 2 मिलियन शेयर चाहिए थे। अब हमें बेचने कितने? 9.7 मिलियन शेयर्स।
तो फिर 38 पे एक बंदे ने लगाई, उसने 2 मिलियन शेयर लिए, फिर 36 पे लगाई 1 मिलियन शेयर। अब ये पूरे कहाँ पे हुए 10 मिलियन शेयर, ये 9.x मिलियन शेयर, ये पूरे हुए 30.5 पे। ये 30.5 जो है फिर आपकी स्ट्राइक प्राइस बन गई। यहां इस कट ऑफ पे जाके वो कह रहे हैं कि इतने डिमांड, इतने शेयर्स हैं जो कि पूरे बिक रहे हैं। आप लोगों को समझ आया जी? ये आप लोग के साथ जो मैंने प्रोस्पेक्टस से शेयर किया वो काइंडली उसमें से भी देख लीजिएगा, उसके अंदर भी दिया हुआ है ये ग्रेड। At this pricing, the entire lot which is being offered, it is being subscribed. आपका कोई सवाल है इसके ऊपर? अच्छा जी, at the close of the bidding period, the strike price will be determined on the basis of Dutch auction method. The bidder who has bid the bids at prices above the strike price will be allotted at the strike price. जो भी अगर मेरी प्राइस ऊपर भी है स्ट्राइक प्राइस से, तब भी मुझे स्ट्राइक प्राइस पे अलॉट होंगे, मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे एक्सेस जो अमाउंट है। In case the bid received sufficient to allot the total number of shares offered under the sale of book building, the allotment shall be made on the basis of highest bid priority, that is bid made at the highest priority. तो इसी तरह अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितनी भी बिड है उनको सबको मिलेगा, और जो स्ट्राइक प्राइस पे अगर फर्ज करें मेरे पास 5 लाख शेयर देने को है लेकिन मेरे पास अमाउंट 1 मिलियन की है, तो वो 50% का प्रोरेटा लग जाएगा उसके ऊपर। आप लोगों को पॉइंट समझ में आया है? Khurram sir, I'm slightly confused on this, perhaps because I don't understand what the Dutch auction method is. I know we've mentioned it in passing before, but I'm saying technically speaking, I don't know if I follow it. ये जो हमने ग्रेड देखी थी ना, ये डच ऑक्शन मेथड वाली ही ग्रेड है। इट इज डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस आती है 52 रुपीज और आपने बिड किया था 53 पे, तो आपको पूरा 100% हो जाएगा अलॉट। हाउएवर अगर 52 रुपीज पे मेरे पास देने के लिए तकरीबन 1 मिलियन शेयर है, लेकिन मेरे पास बिडर जो है वो 2 मिलियन है, तो 52 वालों को प्रोरेटा लगेगा 50% का, बाकी जो 52 से ऊपर थे सबको पूरा मिल जाएगा, और ये आपकी बुक बिल्डिंग खत्म हो जाएगी इस तरह। And Khurram sir, how is the strike price determined here? Based on? It is determined through Dutch auction method। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ऊपर से चलेंगे नीचे तक, तो जहां पे आपकी क्वांटिटी पूरी होती है वहां पे जाके उसका कट ऑफ बनता है। अच्छा, that is the strike price. जी, that is the strike price। जब वो क्यूमुलेटिव क्वांटिटी पूरी हो जाती है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी पूरी होती है, ऑफर्ड क्वांटिटी। I think let's spend the next whatever time we have right now, 5 minutes to if you have any questions. Khurram sir, if I'm just in continuation of what I just said here, there's a question that I have. So, you mentioned how book building nowadays is iterative in nature within a band of 40%, right? Yeah. So what you're saying is, if I was to be one of the first bidders that comes in, let's keep it simple. Let's say a high net worth client comes in, okay? He can only bid plus 10% of the floor price right at the beginning. Is that what it is? He has to. The system will not let him put in a bid higher than that. Assuming if the floor price is 50, he cannot bid more than 55. Okay, I see. Okay, thank you. And that means in that के बाद में बेशक 70 पे बहुत ज्यादा बिडर आ जाए, but because he's right in the beginning, ये बैंड ना सॉफ्टवेयर मूव करता रहता है कि अब आप 58 तक जा सकते हैं, आप 60 तक जा सकते हैं, 65 तक जा, वो एग्रीगेशन पे कैलकुलेशन कर रहा होता है। But what I'm saying is, if say you can bid it, if the floor of a particular offering is decided to be 50 rupees, ठीक है,
and I come in the beginning and offer 55, for instance, right? वो आप कर सकते हैं. And I am no, but if I offer 55, I will guaranteed get what I want in that particular allocation. No. Acha, even then you will have to wait till the process is complete. अब assuming उस वक्त तक strike price ही 52 आई, तो फिर आपको 55 पे पूरी allocation हो जाएगी. अगर strike price आपकी निकल के 60 आई और आप 55 पे खड़े रहे, तो तब तो आपको नहीं मिलेगा. So is there a provision which enables me to be able to revise my bids again and again? Yes, you have the password and the username. You can play with the username and password as many times as possible. Okay, wow. Okay. Because, you know, if you look at a company recently that was listed like Octopus, for instance, that was heavily oversubscribed. Yes. So in a situation like that, you would probably have to revise your bid upwards again and again. Very true. It happens pretty much similarly in all the transactions. उसमें obviously बहुत ज़्यादा demand थी. समी साहब, आपका कोई सवाल? Okay. Perfect. Any other participant who has any question, please feel free. Okay, perfect. I believe there is no question. So I think I've been able to communicate very effectively today, it seems. चलिए जी, मेरा तो वीकेंड फिर अच्छा हो जाएगा. चलिए जी, आप भी फिर enjoy करें weekend, whatever is remaining, and inshallah I'll catch you guys for the 4th session, inshallah, and we will try to wrap this up and obviously see what is remaining of the workshop. And so देखिए, important ये है कि since this is a very close ecosystem, even post this workshop, I am very accessible. You can even separately connect with me anytime. All right. So it is just for your own. This is something I would allow you as participants. आप उसके बाद भी मुझसे connect कर लीजिएगा subsequently. Any information you require, whatever. चलें. With that note, inshallah ji, looking forward to seeing you again, and have a great weekend. You too. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Ji, thank you.